Hello students, welcome to our channel. In this video we are going to discuss tenses. Right, so there are three types of tenses: past tense, present tense, future tense. And in this video we are going to discuss past tense. आज की क्लास में हम past tense discuss करेंगे. And there are four types of past tenses. Past tenses के भी four types हैं. And this is part 1. ये part 1 है और आज की क्लास में हम past tense के दो parts discuss करेंगे. Okay students, let's get started. Tenses. Tense indicates the time of action. It means the time of action and we can say state of an action. कि कोई भी action किस time पर हुआ है. It means ongoing है या वो action या वो work complete हो चुका है या वो work या वो action in future होगा. So tenses has three forms: present tense, past tense and future tense. So in this video we are going to discuss past tense and its formation. It means its forms. So past tense, first is simple past tense. See, simple past tense means it indicates an action completed in the past. कोई work, कोई action जो past में complete हो चुका है वहाँ पर हम use करते हैं simple past tense. Second is past continuous tense. Past continuous. It means it is used to denote an action going on at some time in the past. Past में कोई action start हुआ और past में ही किसी specific time period पर वो complete हो चुका है. It means past में वो ongoing था but complete हो चुका है. Now past perfect tense, it describes an action completed before a certain moment in the past. It means सेंटेंस में आपको दो एक्शंस गिवन होंगे, दो वर्क गिवन होंगे और दोनों ही पास्ट में होंगे. सो पास्ट में ही किसी एक पर्टिकुलर वर्क से पहले कोई काम या पहले कोई वर्क एक्शन कंप्लीट हो जाए, दैट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस. सो एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट. ये वाला एक्शन भी पास्ट में होता है और ये वाला भी पास्ट में. Next is past perfect continuous tense, is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time. So past में वो certain point में start हुआ and then in the past continued up to that time और specific time तक continued था. So अब ये discuss करेंगे examples के through. First is simple past tense. Right, so the simple past is used to indicate an action completed in the past जो past में complete हुआ है. एक्टिव वॉइस, इट मीन्स एक्टिव फॉर्म में हम इसका यूज़ करते हैं सब्जेक्ट देन वर्ब. वर्ब आपकी पास्ट टेंस होगी. पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस बी. बी इज़ लाइक ऑक्सिलरी. वॉज वर्ब आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट मीन्स वॉज एंड इफ़ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल इट मीन्स वर. एंड देन पास्ट पार्टिसिपल. सो फॉर एग्जाम्पल, वी क्रॉस्ड द रोड इन अ हरी. सो क्रॉस्ड पास्ट फॉर्मेशन and this sentence indicates affirmation. It means positive है, कोई negative word नहीं है, affirmative. So we crossed the road in a hurry. Crossed, ed formation, it means past. They did not meet me yesterday. It means negative. So they didn't meet me yesterday, negative word. Did you visit the book fair last week? Interrogative. Last week, then did. ये words indicate करते हैं past tense. और पास्ट टेंस भी किस फॉर्मेशन में? क्वेश्चन फॉर्मेशन में, इंटेरोगेटिव में. इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं. इट इज़ यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस टू एक्सप्रेस एन इम्प्रॉबेबल कंडीशन. इम्प्रॉबेबल कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? जहाँ पर आप सोचते हो कि अगर ऐसा हो सकता था, आप ऐसा कर सकते थे. इफ़ आई न्यू हिम आई वुड अप्रोच हिम फॉर हेल्प. सो इम्प्रॉबेबल कंडीशन. If I knew him, again past formation. If I knew him, I would approach him for help. Next example, if I had money, I would buy a cottage in the mountains. So it means यहाँ पर दोनों ही केसेस में पास्ट की कंडीशन है. अब आपके पास कोई चांस नहीं है वो चीज़ कंप्लीट करने का. यहाँ पर पास्ट वर्ब जो है वो इंडिकेट कर रही हैं सेंटेंसेस को. An improbable condition. If I knew him, I would approach him for help. If I had money, I would buy a cottage in the mountains. But you couldn't. अभी वो चीज़ नहीं हो सकती है.
Now next use is it can be used to refer to a habitual actions and states. It means habitual actions और state आप बता रहे हो, but कौन सा habitual action है जो past में था, अब नहीं है वो चीज़. Grandmother often told us interesting stories. Often told us, it means again past formation. My grandfather liked a cup of hot milk at bedtime. Liked, it means past formation. So habitual actions and state, but किस टाइम पीरियड को वो शो कर रहे हैं, पास्ट वाले टाइम पीरियड को. सो एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज व्हेन वी एक्सप्रेस सम पास्ट हैबिट. जब भी आप पास्ट की हैबिट मेंशन करते हैं, सो वी ऑफन यूज़ वर्ड्स लाइक, तो हम नॉर्मली कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं? यूजुअली, ऑलवेज, जर्नली, ऑफन, समटाइम्स, एवरीडे. तो ऐसे ही वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं पास्ट के एक्शन शो करने के लिए, पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस. राइट, सो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. राइट, इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट. इट मीन्स पास्ट में वो एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्टार्ट हुआ था और एक स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट भी हो गया था, कुछ टाइम पीरियड तक कंटिन्यू था. सो इट इज़ यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट. एक्टिव वॉइस में आपको लिखना है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड देन ing फॉर्म ऑफ द वर्ब. ing फॉर्म, इट मीन्स गो, देन गोइंग, राइट, क्लोज, देन क्लोजिंग. पैसिव फॉर्मेशन, इट मीन्स सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ब प्लस बीइंग एंड देन पास्ट पार्टिसिपल. सो पैसिव वॉइस में आपको बीइंग का यूज़ करना है. सो एग्जाम्पल्स आर, श्रेया वॉज स्लीपिंग इन हर रूम. So subject is singular, so was is there, and then ing form of the verb, sleep, sleeping. और ये sentence कैसा है? Affirmative, it means positive, no negative word. Now next is the children were not watching television. So watching, again ing form of the verb, were not, it means negative formation, and the children plural है इसलिए हमने यूज़ किया है were. So ये negative form है. Why were the dogs barking? Why were the dogs? The dogs ये है आपका सब्जेक्ट. अब dogs के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया है were. It means plural. And then ing form of the verb barking. और interrogative है तो हमने यूज़ किया है why. So that is interrogative formation. इसी के कुछ और examples डिस्कस करते हैं. To express an action which was in progress at a particular time in the past. For example, I was attending guitar classes from June to December. Right. So June to December ये हम कब की बात कर रहे हैं? पास्ट के जून और पास्ट के ही दिसंबर की. So I was attending guitar classes from June to December. So पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम जून में वो स्टार्ट हुआ एंड देन दिसंबर में कंप्लीट हो गया. पास्ट में ही स्टार्ट होकर कंप्लीट हुआ है, प्रोग्रेस में था, बट कहाँ पर? पास्ट के फॉर्म में, पास्ट टाइम पीरियड में. सेकेंड इज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन. कोई पास्ट एक्शन बार बार रिपीट होता है. दे वर कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग अबाउट मनी. कॉन्स्टेंटली, इट मीन्स फ्रीक्वेंटली, आर्ग्यूइंग अबाउट मनी. राइट, सो फ्रीक्वेंटली रिपीटेड पास्ट का कोई एक्शन हो तो भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं. दे वर कॉन्स्टेंटली आर्ग्यूइंग अबाउट मनी. नाउ नेक्स्ट इज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन. ग्रेजुअल, जो धीरे 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 चेंजेस आते हैं. सो ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर. सडनली नहीं हुआ बट ग्रेजुअल. सो इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर. आवर होप्स वर फेडिंग. राइट, सो ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन के एग्जाम्पल्स हैं, बट किस फॉर्म में? पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में. आपको चेक करना है, इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट मीन्स you have to use was, and if your subject is plural then आप were का यूज़ करेंगे. and then formation is ing form of verb. ठीक है, ing form of verb आपको यूज़ करना है. आई होप आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस समझ आ गया हो. राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you like this content, do subscribe our channel and don't forget to like this video. Thank you.